کھاتے ماں کا گاتے دو تین شعر سن لیجیے. آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا. آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا. درد مندوں کی ضرورت شاہ کلیئر. آپ کہیں گے کہ کلیئر شریف کے سرکار صابر پاک کی بارگاہ سے کیا فیض ملتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ والوں کی بارگاہوں سے اسی کو فیض ملتا ہے جس کا پختہ اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, عقیدہ سچا اور پاک ہوتا ہے. آپ کہیں گے سرکار صابر پاک, میں کہوں گا کتابی بات بھی سنیے. پہلے آئیے ضلع مراد آباد میں بھوجپور ایک قصبہ ہے, وہاں ایک ڈاکٹر اعجاز انصاری رہتے ہیں. خدا کی قسم وہ کہتے ہیں میرا بچہ بیمار پڑ گیا, ابھی لاک ڈاؤن کے بعد کی بات ہے, بچے کو بخار ہوا, میں خود ڈاکٹر ہوں, اس کو دوائی کھلاتا رہا, بچے کو آرام نہیں ملا, میں مراد آباد کو سوس میں لے گیا, انہوں نے 2 دن رکھ کر ریفر دلی کر دیا. جب میں دلی لے کر کے گیا اور دلی میں بچے کے چیک اپ ہوئے تو انہوں نے کہا آپ اپنے بچے کو واپس گھر پر لے جائیے, اس لیے کہ آپ نہ تو اتنا پیسہ دے پائیں گے نہ ہم یقین دلا پائیں گے کہ آپ کا بچہ زندہ رہ سکتا ہے 10-20 سال. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بچے کو کینسر ہے, اس لیے واپس لے جائیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا, میری شریر کے حیات رونے لگی. ہم نے کہا چلیے, ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, ہوگا کیا؟ ہم بچے کو لے کر کے واپس آ رہے تھے, حضور سید صاحب کیسے کلندر کا فون پہنچا. کہا ڈاکٹر صاحب بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ڈاکٹر کے یہاں لے گئے تھے, دلی ہاسپٹل میں لے گئے تھے, بتائیے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا اور رو کر کہا بچے کے چیک اپ ہوئے, کینسر آیا ہے, واپس لے کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ واپس گھر پر مت لانا. کہا کیا مطلب؟ کہا گھر پر نہیں لانا ہے بلکہ کلیئر شریف صابر پاک کی بارگاہ میں لے جانا. مجھے حکم بھی یہی ہے بغیر تمہید کے آپ شروع ہو جائیں, اس لیے کہ وقت کی بھی قلت ہے. آپ توجہ رکھیں, یہ کوئی کتابی بات نہیں سنا رہا ہوں. آپ ابھی بھی جا کر کے ضلع مراد آباد اور اسی بھوجپور قصبے میں ڈاکٹر صاحب سے تحقیق لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بچے کے تعلق سے یہ سنا. تو میں نے کہا کلیئر شریف کیا مطلب؟ کیا کلیئر شریف میں دلی سے بڑا ہاسپٹل ہے؟ کیا دلی سے بڑے ڈاکٹر ہے؟ کہا ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی بات نہیں, میں مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر پاک کے بارگاہ کی بات کر رہا ہوں. تمہیں کلیئر شریف لے جانا ہے اور کلیئر شریف لے جا کر کے نہ ہوٹل کا کھانا کھلانا نہ ہوٹل کی چائے پلانا ہے بلکہ کلیئر شریف بچے کو رکھ کر جب بھی کھلانا ہے صابر پاک کی آستانے کا لنگر کا کھانا کھلانا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بی بی سے مشورہ کیا تو بی بی نے کہا بہت اچھا رہے گا کہ ہم کلیئر شریف چلے. ہم نے کلیئر شریف کا ارادہ پختہ کر کے کلیئر شریف پہنچے. ہم نے ہوٹل میں روم لیا, کمرہ لیا, اور بچے کی طبیعت ایسی تھی کہ اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر بٹھانا پڑتا تھا, چلانا پڑتا تھا, لٹانا پڑتا تھا. 3 دن تک ہم کلیئر شریف میں صابر پاک کا لنگر کھلاتے رہے. 3 دن کے بعد میرے بچے نے کہا پوچھان آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں, اٹھانے کی ضرورت نہیں, پکڑنے کی ضرورت نہیں. صابر پاک کا لنگر 3 دن کھا کر کے میرے اندر روحانی طاقت آ چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن فیض اسی کو ملتا ہے جس کا اعتماد پختہ ہوتا ہے. بے شک یقین سچا ہوتا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابو جان اب سے پہلے جب تک کلیئر شریف نہیں آئے تھے میں کمزوری محسوس کرتا تھا, تکلیف محسوس کرتا تھا, لیکن 3 دن سے صابر پیا کا لنگر کھا رہا ہوں تو مجھے اب تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. ابو جان آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بیٹا ہوٹل کے روم سے خود اترتا, آستانے صابر پاک پر جاتا, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میرا بیٹا صابر پاک کے روزے کی جالیوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا اور گھنٹے تک یہی پڑھتا رہتا. مولا کریم صابر, داتا کریم صابر, آقا کریم صابر, خواجہ کریم صابر, میرا بیٹا یہی پڑھتا رہتا. ہم جب کھلاتے تو
اور جیسی طاقت میں صابر پاک کا لنگر کھا کر محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ روح، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، حق صابر یا صابر، حق صابر، حق صابر، حق صابر، حق صابر، حق صابر، نعرہ تکبیر۔ میں آپ کو بتا دوں صابر پاک کون ہے۔ صابر پاک والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے فاروقی ہے۔ حضرات اس لیے کہ صابر پاک کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم عبدالسلام ہے، ان کے والد حضرت شاہ عبدالوہاب ہیں، اور انہی کے والد سرکار غوث پاک ہیں۔ گویا کہ صابر پاک غوث آدم کے سگے پر پوتے ہیں، اور غوث آدم صابر پاک کے سگے پر دادا ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ جب کلیہ شریف میں لیٹے ہوئے پر پوتے کے جلال کا عالم ہے تو بغداد میں آرام کرنے والے ان کے پردادا غوث آدم کے مقام کا کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ نسب کے اعتبار سے اب سلسلے کے اعتبار سے دیکھیے کہ صابر پاک کے پیر حضرت بابا فرید الدین ہے، ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین ہے، اور انہی کے پیر سرکار معین الدین ہے۔ گویا کہ غوث و خواجہ کے فیوز و برکاتی کا نام مخدوم علاء الدین صابر پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون صابر پاک کے بچہ ڈاکٹر کا کہتا ہے ابو جان 22 دن لنگر کو کھایا ہے صابر پیا کے، مجھے کوئی تکلیف، کوئی چبھن محسوس نہیں ہو رہی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے۔ ابو جان میرا دل کہتا ہے کہ صابر پاک کے لنگر کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے، مجھے شفا مل چکی ہے۔ ہم نے سنا تو خوش ہو گئے، بچے کو لیا اور لے کر کے دلی واپس پہنچے، اور اسی ہاسپٹل میں لا کر کے جب دوبارہ چیک اپ کرایا، اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا مشینیں وہی، میں وہی، بچہ وہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 22 دن پہلے مشینیں اسی کو کینسر بتا رہی ہے اور اب کچھ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی دوائی کھلائی ہے، کس ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میں نے دنیا کے کسی ڈاکٹر کی دوائی نہیں کھلاتی ہے، بلکہ غوث آدم کے پرپوتے علاء الدین علی احمد صابر کا لنگر کھلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں گا لنگر کہ 12 سال تک حضور سید صاحب قبلہ کے گھر کی بات ہے، ان کے آبا و اجداد کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں صابر پاک پیدا ہرات میں ہوئے، لیکن 9 سال میں پاک پٹن، 27 سال میں اسی کلیان کلیر میں آیا۔ یہ بتائیے موضوع بدل لوں کہ چلنے لوں؟ ٹھیک لگ رہا ہے؟ یہ بھی اتراکھنڈ میں یوپی میں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اتراکھنڈ میں سب سے بڑی ذات کے ولی صابر پاک ہے روحانی طور پر۔ حضرات اچھا ماشاءاللہ آپ نے کلیر شریف میں 10 دن کا قرآن پاک سنایا، پروگراموں میں بھی الحمدللہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تحسین بھائی نواب صاحب، وہ بھی نواب صاحب ہیں، آپ بھی نواب، رضا شاعر ہندوستان ہے مولانا نواب رضا صاحب، وہ کہتے ہیں حضرت وہ مولانا نواب رام پوری جو آئے تھے جیسا قرآن انہوں نے سنایا آنے والا کیوں نہیں سناتا؟ تو ہم نے کہا آنے والے کی ہر ایک کی آواز ایسی نہیں ہے جیسی ان کی مولانا نواب رضا کی تھی۔ ہمیں یہ وہ ہے الحمدللہ کہ قرآن سنے تو قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے کا جواب نہیں، کلام پڑھے تو کلام پڑھنے کا جواب۔ طبیعت لگتی ہے نا نماز میں بھی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ پیچھے سے آگے تک سب صابر پاک کے دیوانے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سنیے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہیں الحمدللہ حضور سید صاحب تسلیم عارف جہاں کے ہیں، عارف بھائی بھی ہماری تقریر کو الحمدللہ ایسے بیٹھ کے سنتے ہیں جیسے آپ سنتے ہیں۔ انہوں کا دنیا میں مجھے جو شہرت ملی صابر پاک کی شان میں پڑھنے سے ملی۔ ہم نے کہا عارف بھائی ہم وہ سنائیں گے تو آپ نے بھی کبھی نہیں سنایا ہے۔ الحمدللہ میری 13-14 تقریریں سیٹ میں وہ مکمل طور پر ایسی سنتے ہیں کہ صابر پیا کے سنا دیجئے۔ یہاں بھی حضرت نے فرمایا آپ کلیر شریف رہتے ہیں، کلیر شریف سے آئیں تو آپ کو صابر پاکی کا سنانا پڑا جی۔ اب
इमाम हाकिम वक्त होते हैं, बादशाह है, इनका हुक्म सराखों पर है। अब आप कहें तो मौसू बदल दो ना, चलने दो। तो मोहब्बत से एक मरतबा साबिर पाक के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल लगाइए। मैं आपको बचपन सुनाता हूँ साबिर पाक का। हज़रत डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने दुनिया के किसी डॉक्टर और तबीब की दवाई नहीं खिलाई है, मैंने अपने बच्चे को कल्ला वाले का लंगर खिलाया। हज़रत, तो डॉक्टर ने कहा था लंगर, कहा हाँ लंगर खिलाया है। लंगर क्या मतलब? कहा उनकी बारगाह में जो खाना भंडारा होता है वही मैंने अपने बच्चे को खिलाया है। तो दिल्ली के डॉक्टर ने कहा था कि उस बुजुर्ग की बारगाह में भंडारा खाने वाले को इतनी बड़ी शिफा मिलती है, उनकी बारगाह में रहने वाले जो मोहब्बत करते हैं उनको कितनी शिफा मिलती है। अभी तो अल्लाह वालों के यहाँ रहते हैं, सुभान अल्लाह, तभी तो आपको शिफा है, मुकम्मल फैज़ मिल रहा है। हज़रत डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी बीवी को 19 साल से 3 बीमारियां ऐसी थी, मैं खुद डॉक्टर होकर 19 साल से इलाज कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी को शिफा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लंगर हमने बेटे को खिलाया तो हमने भी लंगर ही को खाया, हमारी बीवी ने लंगर को खाया। तो रब्बे काबा की कसम, जहां मेरे बेटे को शिफा मिली वही मेरी बीवी से तीनों बीमारियां काफूर हो गई। इसलिए तो लंगर में बड़ी तासीर है। हज़रत सरकार तो कहते हैं आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। दर्दमंदों की जरूरत शाह करियर आप हैं, और खुद पढ़ाई आपने अपने जनाजे की नमाज, खुद पढ़ाई आपने अपनी जनाजे की नमाज। बाबे मुर्दन बाकरामत शाह करियर आप हैं, और चल उठी बीवी उठी जिसदम निगाहे तू चला, चल उठी बीवी उठी जिसदम निगाहे तू चला। दर्द खातिब की हरारत शाह करियर आप हैं, और कौम को बतला दिया दरसे फना रासे बका, कौम को बतला दिया दरसे फना रासे बका। नाजिश इल्मे तरीक़ा शाह करियर आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह करियर आप हैं, असी सारी मिल्लत इस्लामिया। और एक और ने कहा था कि फना बका की हकीकत बताने आए हैं, वली के राज से पर्दा हटाने आए हैं, और इधर कफन में है मलबूस साबिर करियर, उधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आइए थोड़ा मुख्तसर सा जिक्र कर दिया जाए। साबिर पाक हिरात में पैदा हुए, अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे में। रब्बे काबा की कसम, जमाना कहता है साबिर पाक ने पाक पट्टन में 12 साल तक लंगर को तकसीम किया, लेकिन कुछ खाया नहीं। मैंने कहा तुम सच कहते हो? किसी ने कहा 12 साल तक कलियर में उल्टे हाथ से गुल्लक की शाख को पकड़ा, शहादत की उंगली कल्ब की तरफ, निगाहे आसमान की तरफ। 12 साल तक वो करियर का शहंशाह खड़ा रहा, लेकिन कुछ खाया नहीं। मैंने कहा जब पाकपट्टन में लंगर को तकसीम किया, उम्र 9 साल से शुरू होती है। जब करियर शरीफ में उल्टे हाथ से गुल्लक की शाख को पकड़ा, उम्र 27 साल से शुरू होती है। लेकिन इसको देख कि जब साबिर पाक रात में पैदा होते हैं तो पैदा होते ही साबिर पाक ने सजदा किया। आपकी वालिदा फरमाती है 24 घंटे गुजर गए, मेरे बेटे ने आपको खोलकर मेरी तरफ नहीं देखा, न पानी का कतरा न दूध को नोश किया। 3 दिन हो गए जब मेरे बेटे ने न पानी का कतरा न दूध को नोश किया, न हाथ को हरकत न पाँव को हरकत, न हमारी तरफ देखना न कुछ कहना। मैं रोने लगी, और मेरे शौहर अब्दुर्रहीम अब्दुस्सलाम ने कहा क्या बात है? कहा हिरात में बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी दुआओं के बाद एक फूल खिला है अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम से, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, न कुछ खाता है न पीता है, न दूध न पानी, न देखना न मुस्कुराना। तो उस वक्त में हज़रत शाह अब्दुर्रहीम अब्दुस्सलाम कहते हैं इसी आलम में 40 दिन गुजर गए थे। एक दिन मैंने बगदाद शरीफ की तरफ अपना चेहरा किया, और बगदाद की तरफ चेहरा करके गौसे आदम की बारगाह में अर्ज किया, सरकार आपके सदक़े में अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से सरफराज किया, लेकिन बेटा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा बेटा जब से पैदा हुआ न माँ का दूध पीता है, न ऊपर का दूध, न पानी का कतरा। सरकार करम कर दीजिए ताकि मेरा बेटा मुस्कुराने लगे, हाथ पाँव को हरकत करने लगे, दूध और पानी को नोश करने लगे,
जनाब घबराने की जरूरत नहीं है, वापस जाओ। और अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के काल में 3 मरतबा इलाही खैर करदानी बाक़ी शाह जिलानी, इलाही खैर करदानी बाक़ी शाह जिलानी, इलाही खैर करदानी बाक़ी शाह जिलानी, ये पढ़कर दम करो। जब मैंने 3 मरतबा दाएं कान में पढ़कर दम किया, रब्बे काबा की कसम मेरे बेटे ने आँख को खोला और 40 दिन के बाद पहली मरतबा अपनी वालिदा का दूध नोश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, हक साबिर, हक साबिर, हक साबिर, हक साबिर, साबिर साहब, नारे तकबीर। माशाल्लाह, जैसे नारा लगा रहे वैसे आपको जवाब देना चाहिए, इसलिए कि नारा आपकी बस्ती से इजाद नहीं हुआ है, नारा रामपुर से नहीं चला है, नारा बरेली शरीफ से इजाद नहीं हुआ, नारा कलिया शरीफ से नहीं चला है, बल्कि ये नारा मक्कतुल मुकर्रमा से चला है। सुभान अल्लाह। आप तारीख को पढ़ें और देखें कि जब 40वें मुसलमान हजरत उमर इब्ने खत्ताब हुए थे तो सहाबा ने इसी नारे को बुलंद किया, कुफ्फारे मक्का के दिल दहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीने में पहुंचा और मदीने से इसी नारे को लेकर के सैयदुश्शुहदा बादशाह करबला, मजलूम करबला, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला की जमीन पर उतरते हैं। और जब इमाम हुसैन के दीवानों ने करबला में इसी नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और इसी नारे की दौलत को लेकर के ख्वाजा पाक हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज जब इंडिया की जमीन पर कदम रखते हैं और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ किया तो मुरीदों ने कहा, सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, मैं अजमेर जा रहा हूँ। अर्ज किया, सरकार अजमेर ना जाए, अजमेर के हालात अच्छे नहीं है। शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा गया, शकीस खाकर वापस आ गया। इसलिए सरकार आप अजमेर ना जाए बल्कि दिल्ली में रुक कर दीन का काम करे, किसी करिया में चले, किसी आम शहर में चले, किसी पहाड़ पर चले, लेकिन आप अजमेर में ना जाए। जब ये कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है और मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीदों, तुम कहते हो कि दिल्ली में रुक कर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं, किसी आम शहर में चलूं। याद रखो, मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है। और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी पहाड़ पर गाड़ता है, न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठा करके जवाब दीजिएगा, एक एक हाथ में हाथों को उठाकर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा है। आप खड़े होकर लगाइए ना, देखते हैं कुछ ऐसे आपकी आवाज को सबकी लाज रख लियो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आपको शादो आबाद रखे और सरकार गरीब नवाज का फैजान अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ऐसा मौलाना नवाब रजा साहब ऐसा नारा लगाने वाला दीवाना भी नहीं देखा है और खुदा की कसम जवाब देने वाले दीवाने भी नहीं देखे कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहदीर से दीवाना ना कहो,
दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। और आप बस इसी अंदाज में आप थोड़ी देर और सुन लीजिए, खुदा की कसम। इसलिए नारा लगाते रहिए कि नारा मक्के से चला तो मदीना पहुंचा, मदीने से चला तो करबला पहुंचा, और करबला से गरीब नवाज लेकर के इंडिया में आए थे। और आज यही नारा हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। ऐसा नारा लगे वैसा जवाब दीजिए, कौन साबिर पाक है? आइए मैं साबिर पाक की एक झलक दिखाता हूँ। साबिर पाक ने जब पहली मर्तबा कलाम किया था तो उम्र 4 साल 6 महीने 3 दिन की हो चुकी थी। उससे पहले साबिर पाक ने न अब्बा कहकर पुकारा, न अम्मा कहकर पुकारा, न आपकी आवाज को किसी ने सुना। खामोश रहते थे और खामोशी के साथ अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते थे। और अब्बे काबा की कसम, ये हमारा आपका बच्चा है जो 24 घंटे में 24 मर्तबा माँ का दूध पीता है। लेकिन साबिर पाक ने जब पहली मर्तबा वालिदा का दूध नोश किया था तो पूरे सारी अंदाज में पिया कि एक दिन पीते थे, एक दिन एक रात नहीं पीते थे। दूसरे साल में कदम रखा तो एक दिन पीते थे, 2 दिन 2 रात बिल्कुल नहीं पीते थे। तीसरे साल में कदम रखते ही आपने पीना छोड़ दिया था। साबिर पाक वो है, रब्बे काबा की कसम। आप देखिए कि जब आपका हज़रात गिरामी तरीका ये था कि आप घर से मुसल्ला लेते, एक तस्बीह को लेते और हिरात के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते और सुबह से शाम तक अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते थे, अल्लाह के नारे बुलंद करते थे। शाम को घर में आते, माँ कहती बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कुछ खाना चाहते हो? इनकार कर देते। कुछ पीना चाहते हो? इनकार कर देते। साबिर पाक की उम्र पाक जब 5 साल में 2 दिन कम थे। कितने? 2 दिन। 5 साल। बचपन छोड़कर बस एक झलक दिखाता हूं बचपन की। कौन बोल रहा है? साबिर पाक, वो साबिर पाक ये देखिए कि जिनकी उम्र 5 साल में 2 दिन कम थे। हज़रात गिरामी आपके वालिद के ज़ेरे नाम दर्द शुरू होता है, दर्द की तकलीफ बढ़ने लगती है। जब दर्द ज्यादा बढ़ा तो हज़रत अलीमुल्लाह अब्दाल है और एक और बुजुर्ग ने लिया और लेकर के आपके वालिद को जंगल में आते हैं। साबिर पाक पेड़ के नीचे बैठे हैं, अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहे हैं। आकर के हज़रत अलीमुल्लाह अब्दाल ने अर्ज किया, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर आपके वालिद के ज़ेरे नाम दर्द हो रहा है, दुआ कर दीजिए, दम कर दीजिए ताकि तकलीफ से राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। साबिर पाक ने वालिद की तरफ देखा और निगाहों को उठाया आसमान की तरफ और निगाहें बंद की, गौर कर फरमाया, ऐ अलीमुल्लाह अब्दाल इनको वापस ले जाओ। दुआ करने से, दम करने से कोई फायदा ना होगा, इसलिए कि मैंने देख लिया है कि आसमानों से फरिश्ते जमीन पर उतरने वाले हैं जो मेरे वालिद को दूल्हा बनाकर आसमानों पर ले जाने। ये भी 5 साल की उम्र नहीं है, 2 दिन कम है। हज़रत अलीमुल्लाह अब्दाल कहते हैं हम वापस लेकर के आए तो ज़ोहर की नमाज से पहले हज़रत साबिर पाक के वालिद हज़रत शाब्दुर रहीम अब्दुल सलाम का विसाल हो गया। साबिर पाक को विसाल की खबर मिली, आप गमगीन हो गए। उसके बाद आपने किसी से कोई कलाम ना किया, कभी मुस्कुराए नहीं, किसी की तरफ देखना भी दोबारा ना किया। अपना हुजरा और चंदन, हुजरा और चंदन, खुदा की कसम आप सुबह को आते थे जंगल में, शाम को वापस घर जाते थे। आपकी वालिदा जब पूछती बेटा कुछ खाना चाहते हो? इनकार कर देते। पीना चाहते हो? इनकार कर देते। आपकी वालिदा ने कहा अलीमुल्लाह अब्दाल ये मेरा बेटा अलाउद्दीन जिसकी उम्र मुकम्मल 5 साल भी नहीं है लेकिन दिन भर जंगल में रहता है, रात भर घर के कोने में बैठकर सुबह फजर की अजान तक अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है। मेरा बेटा न कुछ खाता है न पीता है, क्या जंगल में कुछ खाकर आता है? अलीमुल्लाह अब्दाल ने लोगों को लगा दिया, लोग रख गए और देखने लगे और आकर के ये तहकीक पेश की कि आप खाने की बात करते हो, पीने की बात करते हो। रब्बे काबा की कसम ये अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जब सुबह को पेड़ के नीचे मुसल्ला बिछाकर निगाहों को बंद करके अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते हैं तो शाम तक उस जगह से उठते भी नहीं है। खाना तो अलग रहा,
जंगल में रहकर बगैर कुछ खाए पिए अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है, और रात को घर के कोने में बैठकर सुबह तक अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है। उम्र बढ़ती गई, वक्त आगे गुजरता गया। अचानक एक दिन जंगल से घर में तशरीफ लाए और वालिदा से अर्ज करते हैं, अम्मी जान मेरी उम्र कितनी है? फरमाया बेटा तकरीबन 7 साल हो चुकी है। दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह। क्या कहा? 7 साल हो चुकी है। अम्मी जान क्या मैंने कभी खाने का सवाल किया? नहीं बेटा। पीने का सवाल किया? नहीं बेटा। अम्मी जान आपके बेटे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को आज भूख ने निढाल कर दिया है। अम्मी जान अगर कोई चीज हो तो खिला दीजिए, कोई चीज हो तो मुझे दे दीजिए। इतना सुनना था कि आपकी वालिदा की आंखें अश्कबार हो जाती है, इसलिए कि घर में कोई चीज ना थी जो बना करके खिला दी जाती। शहदरात गिरामी इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, घर में दस्ती थी, हजरात गिरामी मुफलिसी का जमाना था, कोई चीज ना थी। वालिदा रोजा रखती है, खजूर पानी पर इफ्तार है, खजूर पानी पर सहरी है। घर में न चावल है, न दाल है, न जौ है, न गेहूं है, कोई चीज नहीं जो बना करके खिला दी जाए। 7 साल की उम्र में बेटे ने पहली मर्तबा जब सवाल किया तो रोने लगी थी वालिदा, लेकिन बेटे का पहली मर्तबा खाने के ताल्लुक से सवाल सुन करके बेटे को आगोश मोहब्बत में लेकर कहा, बेटा अलाउद्दीन साबिर जब से पैदा हुए हो पहली मर्तबा सवाल कर रहे हो। क्या ही अच्छा होता कि अपनी वालिद के जमाने में उनके सामने तुम खाने का सवाल करते, इसलिए कि बेटा तुम्हारे वालिद की तमन्ना थी कि मेरा बेटा अलाउद्दीन मुझसे कुछ तलब करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हजरत आइए, कुछ तलब करे, लेकिन नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा ठहरो। बिठाया, वालिदा ने खाली देगची को लिया, तवज्जो चाहता हूँ, और उसमें पानी को जमा किया, और पानी जमा करके उसमें देगची को चूल्हे पर रख दिया, आग पर चढ़ा दिया, और अपने बेटे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को अपनी आगोश रहमत में लिया, आगोश शफकत में लिया, आगोश मोहब्बत में लिया, और लेकर कहा, बेटा आओ मेरे करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। माँ ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया। थोड़ी देर में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर खाना बन गया है तो मुझे खिला दीजिए। कहा, बेटा मैंने देगची को आग पर चढ़ा दिया है, यानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। थोड़ी देर के बाद फिर अर्ज किया, अम्मी जान अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दीजिए। बेटा मैंने देगची को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, आग पर रख दिया है। जब तीसरी मर्तबा कहा और वालिदा ने यही जवाब दिया, साबिर पाक को जलाल आता है, रानी जलाल में वालिदा की गोद से उतरते हैं और देगची के करीब जाकर के ढक्कन को हटा कर अर्ज करते हैं, अम्मी जान आप कहती है कि मैंने देगची को आग पर रख दिया है, रब्बे काबा की कसम इसी देगची के अंदर उम्दा खुशबूदार चावल बना हुआ रखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सागरे पाक, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह वाह। वालिदा कहने लगी, बेटा क्या मतलब? कहा, अम्मी करीब तो आओ। जब करीब पहुंची तो क्या देखा? जो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक फरमा रहे हैं वही देख सके। ये करामत थी आपकी, ये क्या थी? करामत थी। 7 साल की उम्र में उनकी वालिदा ने अलीमुल्लाह ताला से कहा, अलाउद्दीन साबिर को यहाँ रखना बेहतर ना होगा, इनको पहुंचा दिया जाए इनके मामू बाबा फरीद के यहाँ। मैंने कलियर शरीफ वालों से कहा, कलियर शरीफ वालों अभी भी 2 तकरीरें हुई साबिर पाक के गेट पर, बड़ी मुश्किल कह रहा है कि आप शब बारात की तारीख दे दो हजरत। हमने कहा वो तो उसी वक्त सरकार का अगर हुक्म होगा तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हजरत कहने लगे, कई साल में तो आपके हफ्ते लगे, आप समझते ना, इसलिए आप अभी लिखवा दीजिए। हमने कर लिया, हमें साबिर पाक का पैगाम और जगहों पे ही पहुंचाना है। वहाँ के हजरत कहते हैं कि साबिर पाक के ताल्लुक से कुछ सुनाता नहीं है, हमें जो भी मालूम पड़ा वो कपालों से मालूम पड़ा। हमने कहा नहीं, तुम सुनते नहीं हो, हकीकत में साबिर पाक की शान को बरेली के आला हजरत ने बताया है। वाह वाह वाह। और यही तो कहा हजरत ने, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खरा
आइए देखिए साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की अज़मत और शान मकाम पहचाने। वालदा ने देखा तो बाकी चावल उम्दा खुशबूदार बना हुआ का। मैंने कहा करियर शरीफ वालों, तुम जानते हो कि करियर शरीफ की हर गली में, हर चौराहे पर, हर जगह लंगर क्यों होता है चावल का? कहा क्यों होता है? मैंने कहा इसलिए कि 7 साल की उम्र में साबिर पाक ने करियर की जमीन पर चावल की शक्ल में करामत को जाहिर किया। उसी करामत का असर आज तक करियर शरीफ में नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी माशाल्लाह, वाह वाह। बचपन ही बचपन क्या हो गया हजरत? वो चाय मैं चाहा तो उसको बाद में लाना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। साबिर पाक का बचपन, मोहम्मद जफर साहब, अगर मैं बयान करूं तो बहुत वक्त चाहिए, अब आगे बढ़ लेते हैं। साबिर पाक 9 साल की उम्र में पाक पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में। और कहा आपकी वालदा ने जो मैंने आपको दिया, आप सुनते रहते हैं, कहा तुमने बहुत बड़ा एहसान किया कि तुमने मुझे अलाउद्दीन को दे दिया। ये कौन कह रहे? ये बाबा फरीदुद्दीन कह रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के यहाँ रहते हैं, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन खुद क्या फरमाते हैं सुनिए। आप कहते हैं मैं नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हुआ और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद मेरा दिल चाहा कि अलाउद्दीन साबिर की तरफ जाकर के देखूं कि उनके हुजरे में वो क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं जब मैं अलाउद्दीन साबिर के हुजरे की तरफ गया, उम्र 9 साल है। और मेरे बच्चों सुनो, तुम नमाजों को छोड़ते हो और नारा साबिर पाक की मोहब्बत में लगाते हो, तुम नमाजों को छोड़ते हो और गौसे आदम का नारा लगाते हो, लेकिन 9 साल की उम्र में देखे बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि जब मैं हुजरे की तरफ किया और मैंने झुराकों से झाकर सुराखों से देखा तो क्या देखता हूँ कि अलाउद्दीन साबिर ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में रख रखा है और रो रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा है। मैं देख करके वापस आ गया। दूसरे दिन फिर गया तो मैंने यही आलम देखा। तीसरे दिन गया तो मैंने यही आलम देखा। जब मैंने खटखटाया, दस्तक दी, आवाज दी, अलाउद्दीन साबिर ने पेशानी से सर को उठाया, रोशनी गायब हो गई। दरवाजा खोला, मैंने उसको गले लगाया। जब चेहरे पर हाथ फेरा तो क्या देखता हूँ कि अलाउद्दीन साबिर का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग रहा है, आंसुओं से तर है, आपकी जुल्फें आंसुओं से भीगी हुई है। मैंने ला करके ऊंची जगह पर बिठाया और मैंने कपड़े से अलाउद्दीन साबिर के चेहरे को साफ किया, जुल्फों को साफ किया और मैंने कहा बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ और तुम्हारे हुजरे में तुम्हें रोते हुए देखता हूँ कि तुम्हारा सर खुदा की बारगाह में होता है, हुजरा रोशनी से जगमगाता है, जबकि चिराग भी नहीं है। ये रोशनी कहाँ से है? तुम रोते क्यों हो? मुनाजात क्या करते हो? तो साबिर पाक ने निगाहों को उठाकर कहा था कि मामू जान, मुझे तन्हाई में रख करके मेरा खुदा मुझे ऐसी मंजिलें तय करा रहा है कि मेरा दिल कहता है कि वो वक्त करीब आएगा कि जब मेरा खुदा मुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत साबिर पाक, मसलके आला हज़रत। बहुत यानी मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया में नहीं रहूंगा। खुदा की कसम को तब देखा था सबने। अली असीसा ने मिल्लत इस्लामिया कौन साबिर पाक के लंगर को तकसीम करते थे और आखिर में दुआए नूर पढ़ते थे। सब तकसीम करने के बाद दुआए नूर और चले जाते थे। किसी ने पूछा हुजूर 12 साल हो गए, आप कुछ खाते नहीं? फरमाया मैं दुआए नूर पढ़ता हूँ, मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाता है। हज़रत 12 साल तक लंगर को तकसीम करते रहे, एक दाना भी नहीं खाया। कौन? अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। खुदा की कसम कि जिनको आपने हुक्म दिया था कि जाओ तो मैं कलियर देता हूँ, और कलियर का तारीखी नाम कल्याण है। जैसे आज हरिद्वार में पूजा पाठ होती है, बड़े बड़े मंदिर, इस कल्याण में भी बड़े बड़े मंदिर थे, पूजा पाठ हुआ करती थी। ऊंचे पर जो मदार है हजरत अबू साले और लक़ब उनका इमाम साहब है।
11 लोगों का काफिला लेकर बगदाद शरीफ से आए थे और इसी राजा से जंग की थी, इसी कल्याण को क्लियर किया। और जब 108 साल के बाद साबिर पाक ने इसी कलियर में कदम रखा तो इसी कलियर को कयामत तक पीरानी कलियर शरीफ बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत क्या बात है। अगर उन्हीं के ऊपर मैं तकरीर करूं तो मुझे कम से कम 2.25 घंटे चाहिए और वक्त हुआ जा रहा है। और मुझसे कहा था आपको साबिर पाक सरकार गौसे आदम पर बोलना है। अब एक झलक और दिखा दूं हाफिज शमसुद्दीन की। जी 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 देखो, जाना मत करो बेटा। यहाँ के लोग तो सुनते भी नहीं हैं। साबिर पाक की जलाली बारगाह है, अगरचे आज जमाल है। मैं बड़े दिल से दुआ करूंगा कि मौला मैं जहां पहुंचा था उन सबको साबिर पाक का खुसूसी फैजान अता फरमाए। वहां तो खुद खुदा की कसम उस बस्ती में नबी की औलाद आराम फैज मिल रहा है, खुशनसीब है। हजरत आइए देखिए, साबिर पाक को कलियर शरीफ दिया गया। कभी आया तो फिर बचपन थोड़ा सा और बयान करूंगा। कलियर शरीफ आप पहुंचे, उम्र 27 साल है और कलियर शरीफ में गुलजारी मुरीदा के यहाँ ठहरे। उसको हजरत बल्कि सही तौर पर जब मैंने और किताबों को पढ़ा तो उसमें आया वो मुरीदा नहीं थी, इसलिए कि आपने एक ही मुरीद एक ही खलीफा बनाया। आपकी अकीदतमंद थी, मोहब्बत करती थी आपसे, आप उसी के यहाँ ठहरे, असीसा मिल्लत इस्लामिया। और जब रईस सम्मान ने और काजी तबरक ने आपको मुसल्ले से हटा दिया था, वो मामला बड़ा तवील है, चलता रहा। जो इसी कलियर का रईस आजम था जिसका नाम सम्मान था हजरत गिरामी, और काजी तबरक जो यजीद की नस्ल का था, साबिर पाक ने पहले ही दिन मुसल्ले पर बैठकर फरमाया तुम इस मुसल्ले के अहल नहीं हो, इसके काबिल नहीं हो। लेकिन वो बगावत पर आमादा हो गया। मामला बड़ा तवील, कई दिन तक कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक वक्त था कि साबिर पाक जुमे के दिन मुसल्ले पर बैठे थे। काजी तबरक ने इसी रईस से सम्मान को चढ़ाया और साथ में लाकर कहा कि हटिए मुसल्ले से। और आपको जब हटाया गया, पहली दूसरी सबसे होते हुए जहां लोगों ने चप्पल उतारे, जूतियां उतारी, उसी तरफ पहुंचे और इस काजी तबरक ने नमाज पढ़ानी शुरू की। जैसे ही रुकू किया, साबिर पाक को जलाल आता है, निगाहे जलाल उठती है। और मस्जिद में तकरीबन 15,000 नमाजी थे। आपने फरमाया मस्जिद सब रुकू कर रहे हैं, तो खड़ी है। अल्लाह, ये कोई ऐसे ही हजरत बात नहीं, मोतबर मुस्तनद हवाले से मैं बोल रहा हूँ। साबिर पाक के ताल्लुक से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ कोशिश करके 7 किताबों को हासिल करके मैं बोलता हूँ। इतना कहना था कि मस्जिद ने 15,000 नमाजियों को लिया और दूसरा ना मस्जिद रही, ना नमाजी रही, ना काजी रहा, ना वो तबरक रहा। नामो निशान उसका नहीं, उसकी नस्ल का भी खत्म हो गया। इसलिए किसी अल्लाह वाले से बैर नहीं करना चाहिए। हजरत वो सरकार साबिर पाक आई थी, यही गुजारी, कहा सरकार मेरा बेटा भी तो था शहाबुद्दीन। अलीमुल्लाह अब्दाल की तरफ इशारा किया, उस जगह पर है, हाथ डालो, टांग पकड़ो, खींच लो। हाथ डाला, उन्होंने टांग पकड़ा, खींच लिया। कहा ऐ गुजारी इसको ले जा और हफ्ते 12 कोस तक नजर मत आना, इसलिए कि अब मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं रहेगा। हजरत हफ्ते 12 कोस तक चलाकर हर चीज को खाकिस्तर कर दिया था। अलीमुल्लाह अब्दाल से कहा था अब कोई मेरी निगाहों के सामने ना आए, इसलिए कि जो सामने आएगा वो बच नहीं पाएगा। तुम निगाह तुम पीछे रहना और मेरे पीर बाबा फरीदुद्दीन को शाम को मेरे हालात सुनाते रहना, जाकर के बयान करते रहना। उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ लिया था, शहादत की उंगली को कल्ब की तरफ, निगाह आसमान की तरफ। रब्बे काबा की कसम, जब निगाह आसमान से हटती थी जमीन पर जाती, आग के शोले दरख्त पर जाती, चलकर खाकिस्तर चरिंद परिंद पर पड़ती, चलकर खाकिस्तर हफ्ते 12 कोस तक हर चीज जला करके खाकिस्तर कर दिया था। हजरत गिरामी अभी साबिर पाक को खड़े हुए 8 साल हुए थे कि यही हाफिज शमसुद्दीन जो हसनी हुसैनी सादात में से थे, इन्होंने तुर्किस्तान
के तिबरा गांव के अंदर रह करके जब जो नाम सुना बाबा फरीदुद्दीन का कि गल्ला का बनी रहता है, तो चले वहां से 22 हम असर उलमा को लेकर के बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में आए। अर्ज किया सरकार, हमने आपका चर्चा, आपकी विलायत का शोहरा तुर्किस्तान में सुना, तो हम सब चले आए आप मुरीद करने। बाबा फरीदुद्दीन ने निगाह विलायत को उठाया और इरशाद फरमाया, इन सब का हिस्सा मेरे पास है, तेरा हिस्सा किसी और के पास है।